Okay, before you were injured, it was banger after banger after banger. But since you've returned, it looks to me like it's been burger after burger after burger. Assalamu alaikum and welcome to the Rate Feed Show. This first video is just a short review of this week's Monday Night Raw, which was kicked off with the main event, Jey Uso. Jey was in the ring and he was cutting his promo, and then he was interrupted by the Judgment Day leader against the World Heavyweight Champion Damian Priest, and he then praised himself and he praised Jey Uso and he says, "We were the next one as we discussed backstage, but you are not, and I'm holding this championship, और मैं हूँ वो next one जिसके हम बात करें." JD McDonough showed up. He was trying to super kick Jey Uso, but then he ended up super kicking his own leader, Damian Priest. Damian Priest काफ़ी ज़्यादा frustrated थे उसको लेके, but क्या कर सकते हैं, JD McDonough को प्रूव करना था कि Damian Priest need them, जो कि आगे जाके गलत साबित हो गया. The crowd reaction for the main event Jey Uso was amazing. Pat McAfee was also enjoying the all what, saying yeet and yeet again. And backstage, JD McDonough को फिर school किया Damian Priest ने. He was then joined by Dominic Mysterio, who came up with a sling in his hand, and also the leader of the Legado del Fantasma, Santos Escobar, or he said, "Okay, I can't compete tonight with you, JD McDonough, but Santos Escobar will join you against Ricochet and Andrade." We saw the ring general backstage when Raw kicked off. The ring general ring में आए the Imperium के साथ. I'm talking about Gunther. He said कि 666 days जो थे, the Intercontinental Championship was lifted by me, और वो वहाँ पे चली गई जहाँ पे पहले नहीं थी, but he was then interrupted. और ये उन्होंने साथ ये भी बताया कि he was not going for anything else because he had a lot of pressure on his shoulders, जो कि Intercontinental Championship का था, और अब वो free हैं. And he then declared himself for the King of the Ring, which is coming in May, and it will be going to happen in Jeddah, Saudi Arabia. It was then shortly again interrupted by the New Day. New Day came to the ring and he said, they were like, Xavier said, "I am the current reigning defending King of the Ring," and he said, "You're not. You were just a king made accidentally, or तुम एक clown हो जो कि सच था." I think he was the worst King of the Ring, Xavier Woods. And then it was a tag team match, Vinci and Kaiser versus the New Day. And in the match, I thought कि ये Imperium का fiction का last day होने वाला है, and it happened जब वो हारे the New Day से. Gunther was really frustrated and he said something to Kaiser, and Kaiser came to the ring. He just appreciated Vinci for his services, and then जब वो ring से जा रहे थे, बिल्कुल ring से उतरते ही उन्होंने Vinci को अटैक किया, and he did same which he did to Kofi Kingston. और फिर Kofi Kingston को 5 से 8 माह के लिए sideline होना पड़ा था ring से, क्योंकि he was on the footsteps और he attacked his shoulder. इसके बाद announcement होती है किंग ऑफ द रिंग की, जो कि बार बार हेडलाइंस भी चल रही थी कि वो जेदा सऊदी अरेबिया में होने जा रहा था, किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग. इसके अलावा WWE बताता है कि कैसे the 4 events they had in the UK tour were all sold out and more than 42,000 fans attended that historical event. और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि Michael Cole kept on saying that 5-minute title reign Drew McIntyre had at WrestleMania, and he was all night saying कि यार ये 5 मिनट की टाइटल रेन थी, 5 मिनट की टाइटल रेन थी. एंड देन पैट मैकफी वन सेड कि यार ये 5 मिनट की टाइटल रेन भी जो थी वो काफ़ी बेहतर थी, और वो थी टाइटल रेन से. इसके बाद द स्कॉटिश साइकोपैथ रिंग में आते हैं और ये बताते हैं कि ये मैं नहीं था, ये CM Punk था, जिसकी वजह से मैं पहले रेसलमेनिया में अपना टाइटल इट कॉस्ट मी माई टाइटल एट रेसलमेनिया एंड देन एट रॉ. जब वो Jey Uso के साथ थे तो इंटरफेरेंस हुई CM Punk की वजह से. बट और हर जगह पे चैंट्स चल रही थी CM Punk की. एंड देन Sheamus came to the ring, his friend, और he said कि यार ये तुम्हारी ऑब्सेशन है, और ये जो तुम सब पे बर्डन डाल रहे हो, सब पे ब्लेम कर रहे हो सबको, ये नहीं है, तुम्हारी अपनी गलती है. और उसने बताया उसे कि जब मैं जा रहा था तो हम लोग बैंगर जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे, और ये बातें पसंद नहीं आई ड्रू मैकिंटायर को. ड्रू मैकिंटायर ने भी उनको बताया कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे जाने से पहले तो बैंगर बिफोर आफ्टर बैंगर. बट जब से तुम वापस आए हो, उन्होंने उसी चीज़ की बात की, बॉडी शेमिंग की बात की, जो भी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, और वही बात उन्होंने की कि जब से तुम वापस आए हो, आई थिंक इट वॉज ड्यूरिंग दैट इंजरी, अ बर्गर
आफ्टर बर्गर शेमस करेक्टर ब्रेक हुआ, शेमस हंस पड़े, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने कहते हैं ना उसे नब्ज़ ऑफ स्टील, तो ड्रू मैकिंटायर ने अपना कैरेक्टर वहीं पे रखा और शेमस ने उनको बताया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, और उसने फिर ड्रू मैकिंटायर ने उसे बताया कि तुम्हारा एक मैच होने जा रहा है और मैं आई बी हैविंग योर बैक। शिंसुके नाकामोरा, इट वाज बैंगर ऑफ अ मैच, लास्ट बेटर देन लास्ट वीक। शेमस को अटैक किया फिर से सर्जिकल नेक पे शिंसुके नाकामोरा में, लेकिन बहुत बेहतरीन मैच था और शिंसुके नाकामोरा को शेमस ने डिफीट किया एंड ड्रू मैकिंटायर वाज हैप्पी विद दैट। रॉ में माइकल कोल से दोबारा से वर्सेस हुए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक्चुअली वाज शेमस वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। एंड देन जब बैटल रॉयल होने जा रहा था मेन इवेंट में विमेंस फॉर द विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, ही सेड इट इज अ रॉयल रंबल मैच, जो कि बाद में उन्होंने सही कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज 1901st मैच ऑफ शेमस इन WWE। और उसके बाद हम देखते हैं सैमी ज़ैन बैक स्टेज होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आई डोंट नो व्हाई चैट कैबल डिड दिस टू मी, और देन ही वाज कन्फ्रंटेड बाय ब्रॉन्सन रीड एंड ही सेड्स कि मैं आ रहा हूँ आपके इस टाइटल के लिए, एंड देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। और जब वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं तो ब्रॉन्सन देन अटैक्स हिम, और उसके बाद सैमी ज़ैन को नोज पे वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक सो कि वो ब्लीडिंग होती है, बट रेड हो जाता है उनका नाक, और ये काफ़ी तशवीश की बात है क्योंकि सैमी ज़ैन को 2 weeks, it's been 2 weeks that he's been attacked by his opponents, which is not a good sign for Sami Zayn. इसके बाद वही होता है, चैट गैबल रिंग में आते हैं with Otis, Akira Tozawa and Max Murphy, और वो बताते हैं कि कैसे it was his moment at WrestleMania, वो he wanted to celebrate with his daughter, but Sami Zayn ने वो मोमेंट इनसे छीन लिया। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो तीनों इनके अपने द अल्फा अकेडमी के मेंबर्स जो हैं इनके लिए एम्बेरसमेंट हैं और ऑटिस उन सब में से बड़ी एम्बेरसमेंट है। और फिर वो कहते हैं कि पहले मैं तुम लोगों के लिए था, लेकिन अब तुम तीनों को मिलकर मेरे लिए इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत सकूँ, और टिकना चाहते हुए भी इस चीज़ में हम ही बढ़ते थे। और आई थिंक सो कि ये बहुत जल्द एक और ब्रेकअप होने वाला है इस फैक्शन का, और द क्रीड ब्रदर्स और देयर वे टू द मेन रोस्टर, और आई थिंक सो कि द क्रीड ब्रदर्स विल टीम अप विद चैट गैबल फॉर एन फैक्शन। और इसके साथ साथ फिर से QR कोड जो होता है वो स्क्रीन पर अपीयर होता है। क्लैश ऑफ द कैसल की जो सेल है टिकट्स की, वो कॉम्बो सेल जो होगी, क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड द क्लैश ऑफ द कैसल जो है वो दोनों इस फ्राइडे को ऑन एयर होने वाली हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, कॉम्बो टिकट बाय कर सकते हैं जो भी हैं अपने स्कॉटलैंड के इवेंट के लिए। इसके बाद रिकोशिड एंड अंद्राडे वर्सेस जेरी मैकडोना ऑफ द जजमेंट डे एंड सैंटोस एस्कोबार ऑफ द लेगाडो डेल फैंटास्मा आते हैं रिंग में, और ये मैं सोचता हूँ कि द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, येस इवन बेटर देन दी बैटल रॉयल, विमेन बैटल रॉयल। और इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, हाई फाई मूव्स होते हैं, और अंद्राडे को मैं देखना चाहता हूँ हाई फ्लाइंग मूव्स करते हुए, क्योंकि ही इज़ द नेक्स्ट वन इन द लाइन फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और होता है ऐसे ही है कि रिकोशेट और अंद्राडे जेरी मैकडोना सैंटोस एस्कोबार को हरा देते हैं, लेकिन इसके बाद डेमिन प्रीस्ट आते हैं और दोनों को अटैक करते हैं। He then uses his finisher to attack Andrade, and he tells Jerry McDonough and Dominic Mysterio. I'm talking about Dominic Mysterio. He was sidelined at the ring. ये इनको बताते हैं कि तुम लोगों की ज़रूरत मुझे हरगिज़ नहीं है, मेरी ज़रूरत तुम लोगों की है। और इसके बाद हम देखते हैं बैक स्टेज इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, बेकी लिंच माइक लेती हैं और सारी वीमेंस होती हैं, दे वर प्रिपेयरिंग दिमसेल्व्स फॉर दी बैटल रॉयल। और उसके बाद वो देखती हैं और फिर मैक्स रिपल को बताती हैं कि तुम्हें जाके ये बताना है वहाँ पे कि ये तुम्हारा लास्ट बैटल रॉयल नहीं है, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। इस दौरान लिव मॉर्गन एंड नाया जैक्स वर इन्वॉल्वड इन अ क्लैश, वो मैच को हाइप कर रहे थे, और वहाँ से ही एंट्रेंस अपनी लेती है बेकी लिंच, और हम लोग गोरिल्ला पोजीशन में देखते हैं ट्रिपल एच को, रोडॉक को, विलियम रेगल को। आई वाज रियली हैप्पी कि वो अब तीनों वापस आ चुके हैं, जो कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि ऐसा कभी भी ना हो। बैक साइड में को देख के खुशी हुई, बेकी लिंच रिंग में आई, सारी वुमेन कंटेंडर्स रिंग में आई, और उसके बाद किक ऑफ हुआ बैटल रॉयल। उसके बाद फोर्सेस जो थी पाइपर और नाया जैक्स को एलिमिनेट करने के लिए लग गई थी। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा मैच हुआ। लास्ट में 3 एक्सपेक्टेड जो थी वो रिंग में रह गई थी, और दो नाया जैक्स ने काफ़ी विशियस अटैक किया बेकी लिंच पे, उन्हें कमेंट्री टेबल पे भी समोन ड्रॉप भी दिया, उसके बाद पावर बॉम्ब के साथ तोड़ी भी वो टेबल, बट बेकी लिंच देन मेड हर वे टू द रिंग अगेन। और उसके बाद लिव मॉर्गन एज एक्सपेक्टेड, नाया जैक्स एंड बेकी लिंच were the 3 remaining in the ring। उसके बाद बेकी लिंच ने बहुत कोशिशों के बाद नाया जैक्स को एलिमिनेट किया, और फिर वो रिंग के एप्रन पे वो दोनों लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच लड़ती रहीं, और एट द एंड विद अ मैन हैंडल स्लैम बेकी लिंच eliminated Liv Morgan, and she became the 6th time world heavyweight
वर्ल्ड चैम्पियन और वी कैन से WWE चैम्पियन। वो थोड़ी सी हैरान लग रही थी, लेकिन हैरानगी के बाद उन्होंने जाके क्राउड के साथ सेलिब्रेट किया उसे। और काफ़ी लोग इस चीज़ से खफा हैं कि वो कह रहे हैं ट्रिपल एच वुमेन्स डिवीज़न को सही तरह बुक नहीं कर रहे। और आई थिंक सो कि एक स्पॉट हो सकता है जहाँ पे ट्रिपल एच इस टाइम पे थोड़ा सा वीक हैं, क्योंकि लिव मॉर्गन को वो अपॉर्चुनिटी दे दी जाती तो बेस्ट होती। बट ही हैज़ समथिंग एल्स फॉर लिव मॉर्गन, क्योंकि जजमेंट डे के साथ उन्हें उस चीज़ को चलाना है। और वो जो स्टे डाउन हुआ था डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन का बैक स्टेज, आई थिंक ये बैक क्लैश में कुछ ना कुछ होने वाला है। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड मंडे नाइट रॉ. The best match of that night was Andrade and Ricochet versus Santos Escobar and JD McDonough, because I liked that match for Andrade. It was a short review of this week's Monday Night Raw. I know कि बहुत सारे बोचेस मुझसे भी होंगे, गलतियाँ हुई होंगी, but this is first of the many videos I'll be having on my channel. और इंशाल्लाह ताला हम रेसलिंग, फुटबॉल, हर स्पोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे उस चीज़ के बारे में कि जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।